सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करेंगे एंगुलर एसएचएम एंड इट्स डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी तक हमने पढ़ा था लीनियर एसएचएम, जिसके अंदर पेंडुलम will move along straight line, so it will perform linear SHM. एक linear SHM कब possible था पेंडुलम के लिए? जब length is sufficiently large and amplitude is very very small. इन दो कंडीशन के कारण the simple pendulum will perform linear SHM. अभी angular SHM, आप एक वायर ले लो और वायर के वन एंड को आप फिक्स कर दीजिए और सेकंड एंड पे आप एक डिस्क उसको आप अटैच कर दीजिए। अब आप क्या करो, उस पर्टिकुलर डिस्क को घुमाओ या फिर वायर को घुमाओ। तो जब आप डिस्क को हल्का सा रोटेट करेंगे देन वायर विल बी ट्विस्टेड, वायर हल्का सा ट्विस्ट होगा। और जब आप उस पर्टिकुलर डिस्क को छोड़ देंगे देन इट विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन और वी से मीन पोजीशन। In this way, it will come back in the opposite direction. फिर वो अपनी mean position पे जाके रुकेगा नहीं और वो उल्टी डायरेक्शन में चलता रहेगा। In this way, it's keep on oscillating. So such an oscillation where angle is made is called as angular SHM. Called as angular SHM. अच्छा, linear motion में क्या था? Force होता है और angular force is called as torque. क्या बोलेंगे? Torque. वैसे torque क्या होता है? Torque is the product of force and perpendicular distance. What is torque? Product of force and perpendicular distance. Ability of the force to produce rotational motion is called as torque. Ability of the force to produce rotational motion is called as torque. I hope you got it. तो यहाँ पे चूंकि जो डिस्क है वो एंगुलर मोशन में हो रहा है तो यहाँ पे फोर्स नहीं बल्कि टॉर्क लगेगा। So we can say the force is acting. In other words, we can say torque is acting. I hope you got it. Because ability of the force to produce rotational motion is called as torque. Is that clear? Now, अभी अगर सपोज आपने उस डिस्क को ये साइड में घुमाया तो जब आप ये साइड में घुमाएंगे तो सपोज एंगल इज थीटा और रिस्टोरिंग टॉर्क उसको वापस ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके आएगा। सो कैन वी से द रिस्टोरिंग torque and the angle are in opposite direction. I repeat, अगर आपने डिस्क को ये साइड में घुमाया तो टॉर्क वापस उल्टे डायरेक्शन में लगेगा and therefore can we say the torque and displacement are in opposite direction. Point number 2, जब angular displacement जितना ज्यादा होगा टॉर्क उतना ही ज्यादा होगा. So can we say the restoring torque is directly proportional to angular displacement? I hope you got it. So what is the angular SHM? Angular SHM is defined as, we can say, motion in which it's a periodic motion in which the restoring torque is directly proportional to angular displacement from the mean position and it is always directed towards the mean position. जो टॉर्क है वो हमेशा mean position मतलब angular position की तरफ ही जाएगा. I hope you got it. मतलब सपोज जैसे आपने यहाँ से शुरू किया था और जब आप उसको ऐसा घुमा दिया तो वापस इसकी तरफ ही मूव करेगा. So we can say it's a periodic motion in which the restoring torque is directly proportional to angular displacement. And remember, restoring torque and angular displacement are in opposite direction. Are in opposite direction. I hope it's clear. तो एक चीज आपको क्लियर हो गया कि restoring torque is directly proportional to angular displacement and angular displacement and restoring torque are in opposite direction. I hope it's clear. पक्का? कोई डाउट? Now siblings, अभी consider a disc of mass m. ये आपका string है, we call metal string है. अब जैसे आप डिस्क को घुमाएंगे तो अगर आप डिस्क को घुमाएंगे तो there will be twist in the wire. वायर में ट्विस्ट होगा और जैसे ही आप डिस्क को छोड़ देंगे the wire will come to its original position. Let tau be the restoring torque, theta be the angular displacement. Then by definition torque proportional to angular displacement. So tau proportional to minus theta.
minus sign shows that torque and angular displacement are in opposite direction. So tau equal to minus c theta, where c is called as constant. C is called as constant. So tau equal to minus theta. This is called as mathematical form of angular SHM. So it is tau equal to minus c theta. Is that clear? लेकिन you know that tau equal to I alpha. You know that force is equal to mass into acceleration. ये linear motion में था, तो इसका एनालोगस क्या होगा angular motion में? मैंने कहा था force should be replaced by torque, mass should be replaced by moment of inertia, angular acceleration should be replaced by linear acceleration. ये बात आपको याद रखना है जब हम लोग पढ़ेंगे a topic named as moment of inertia. यहाँ पे इसका एनालोगस होगा, लेकिन आपको याद रखना हमेशा कि जो लीनियर मोशन में इक्वेशन होते हैं, एंगुलर मोशन में ये इक्वेशन होता है. तो लीनियर मोशन में क्या था? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या होगा? टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा. टाउ मतलब टॉर्क, आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन. आई होप यू गॉट इट. सो रिमेंबर, टाउ इक्वल टू आई अल्फा. टाउ टॉर्क, I moment of inertia, alpha angular acceleration. So tau equal to I alpha. Say equation number 2. आप 1 और 2 को इक्वेट करो. So I alpha is equal to minus c theta. Okay. अभी आप अल्फा का वैल्यू, अल्फा क्या होता है? Angular acceleration. How to define it? Angular acceleration is defined as rate of change of angular velocity. So alpha equal to d omega by dt. d omega by dt equal to d by dt of omega. What's omega? Rate of change of angular displacement. Rate of change of angular displacement. So it is d theta by dt. अभी it will be d square theta by dt square. तो अल्फा का वैल्यू हो गया d square theta by dt square. अल्फा का वैल्यू आप इसमें सब्स्टिट्यूट करो तो क्या मिलेगा? I into अल्फा. अल्फा क्या? d स्क्वायर थीटा बाई dt स्क्वायर इक्वल टू ये माइनस थीटा, यहाँ पे माइनस में था सी थीटा, और जब यहाँ पे लेके आएंगे तो प्लस में हो जाएगा. तो प्लस सी इंटू थीटा इज इक्वल टू 0. आई होप यू गॉट इट. अभी पूरे इक्वेशन को आप आई से डिवाइड कर दो. सो आई यहाँ पे चला जाएगा, तो d स्क्वायर थीटा बाई dt स्क्वायर प्लस सी थीटा अपॉन आई इज इक्वल टू 0. This is the differential equation of angular SHM. I hope you got it. Okay, so once again, what is इसका definition देखो एक बार वापस. Angular SHM is defined as a periodic motion in which restoring torque is directly proportional to angular displacement of the particle. I hope you got it. Restoring torque is directly proportional to angular displacement of the particle, and restoring torque and angular displacement are in opposite direction. Now, by definition of period of SHM, what do you mean period of SHM? The time taken by the particle to complete one SHM is called as period of SHM. T का फॉर्मूला क्या? T equal to 2 pi by omega. T equal to 2 pi by omega. Is that clear? अच्छा देखो, अभी लीनियर मोशन में क्या था? लीनियर मोशन में फॉर्मूला था ओमेगा इक्वल रूट ऑफ ए बाय एक्स. क्या था? ए बाय एक्स. व्हाट इज ए बाय एक्स? एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट. आई होप यू गॉट इट. आई एम सॉरी, लीनियर एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट. एंड देयरफॉर यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा? 2 पाई बाय अल्फा इंटू थीटा. क्या हो जाएगा आपका? Alpha into theta, where alpha is called as angular acceleration and theta is called as angular displacement. I hope you got it. एक बार फॉर्मूला वापस याद रखना. t का फॉर्मूला क्या था? 2 पाई बाय रूट ऑफ अल्फा अपॉन थीटा. याद करो अपने लीनियर मोशन में फॉर्मूला क्या था? t इक्वल 2 पाई बाय रूट ऑफ एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. I hope you got it. पक्का? Now see please. अभी magnet vibrating in uniform magnetic field. ये जो आपका मैग्नेट है,
वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वाइब्रेट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट्स कंसीडर अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन B बार, इंडक्शन B बार। अभी इसके ऊपर आप एक मैग्नेट पुट करेंगे, तो ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक लेंथ, कॉल्ड एज मैग्नेटिक लेंथ। आई होप यू गॉट इट। अगर ये मैग्नेट एग्जैक्टली मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में रहेगा तो इस पे किसी प्रकार का कोई फोर्स या टॉर्क एक्सर्ट नहीं होगा। इज दैट क्लियर? लेकिन अगर आप यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा कि ये पॉइंट को इस तरफ फोर्स एक्ट करेगा और ये पॉइंट पे इस तरफ फोर्स एक्ट करेगा, एंड ड्यू टू दिस फोर्स इट विल ट्राई टू मूव लाइक दिस वन। Are you getting me? And therefore magnet always tries to move in a direction of magnetic field. Magnet हमेशा magnetic field के डायरेक्शन में होगा। Is that clear? So अब क्या करते हैं, consider a magnet making an angle theta with the direction of magnetic field. ये जो मैग्नेट है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाता है। इसके ऊपर फोर्स लगेगा, ये QM इज नथिंग बट व्हाट वी कैन से पोल स्ट्रेंथ। ये नॉर्थ पोल है इसलिए प्लस है और साउथ पोल इसलिए माइनस है। अभी ये QM इज कॉल्ड एज पोल स्ट्रेंथ। अच्छा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन? इट इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ। इट इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ। सबका डेफिनेशन आपको मालूम रहेगा। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में बेसिक थिंग चार्ज होता है, इसीलिए इट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैग्नेट के अंदर पोल स्ट्रेंथ रहेगा, इसीलिए मैग्नेटिक इंडक्शन इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ, फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो फोर्स विल बी QM into B। तो ये हो गया आपका फोर्स, एंड देयरफॉर कैन वी से ये आपका जो फोर्स है, दिस फोर्स विल बी व्हाट, QM into B। आई होप यू गॉट इट। तो फोर्स ऑन नॉर्थ पोल इज QM into B एंड फोर्स ऑन साउथ पोल इज माइनस QM into B। ये आपका हो गया दो फोर्सेस। इज दैट क्लियर? पक्का? सो रिमेंबर द फोर्सेस आर QM into B and this force is minus QM into B. Agree? Now see this. What do you mean by dipole moment? तो ये जो मैग्नेट है उसका डायपोल मोमेंट क्या रहेगा? डायपोल मोमेंट is defined as product of the pole strength and the magnetic length, and the mu equal to QM into L. Pole strength is QM and the magnetic length is 2L, and dipole moment is QL into 2L. QM into 2L. QM into 2L. I hope you got it. What is torque? Actually torque का direct formula है, it is mu b sin theta. The formula for torque is mu b sin theta. The formula for torque is, it is tau equal to mu b sin theta. I hope you got it. ये बेसिक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अच्छा, म्यू का फॉर्मूला क्या था? इट इज QM into 2L, मतलब पोल स्ट्रेंथ into 2L. 2L is called as magnetic length. Now important thing, if theta is very small then sin theta is almost equal to theta. ये हमने पहले भी पढ़ा था। I repeat, if theta is very very small then sin theta is almost equal to theta, provided the theta is expressed in terms of radian. Expressed in terms of radian. So sin theta is almost equal to theta. I hope you got it. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? tau equal to mu b into theta. अब important thing, you know that torque and theta are in opposite direction, and therefore यहाँ पे आपको minus sign डालना पड़ेगा. So minus sign show that the torque and theta are in opposite direction. So tau equal to minus mu b theta. Say equation number 2. I hope you got it. अच्छा, वापस देखो, what the formula for torque? tau equal to I into alpha. tau equal to I into alpha. अब उसको आप इक्वेट करना पड़ेगा. So tau equal to I alpha. So I alpha is equal to minus mu b theta. I repeat, tau का फॉर्मूला क्या मिला आपको? minus mu b theta. tau का फॉर्मूला क्या है? I alpha. So I alpha equal to minus mu b into theta. लेकिन आपको क्या चाहिए था? अल्फा अपॉन थीटा, याद है? बिकॉज एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा का फॉर्मूला क्या था? रूट ऑफ
अल्फा अपॉन थीटा। तो यहाँ से आपको अल्फा अपॉन थीटा मिल जाएगा, तो थीटा को आप यहाँ ट्रांसफर करो तो अल्फा अपॉन थीटा हो जाएगा, आई को आप यहाँ पे ट्रांसफर करो आपको मिलेगा माइनस म्यू बी अपॉन आई। देयरफॉर वी कैन से थीटा को आपको मिल गया अल्फा, सो अल्फा इज इक्वल टू माइनस म्यू बी अपॉन आई इंटू थीटा। से इक्वेशन नंबर 4। अच्छा, म्यू बी अपॉन आई इज कांस्टेंट, तो म्यू बी एंड आई आर कांस्टेंट, सो कैन वी से अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। Since angular acceleration is directly proportional to angular displacement, hence we can say particle perform simple harmonic motion. Since angular acceleration is directly proportional to angular displacement, hence particle performs simple harmonic motion. I hope you got it. अब वापस देखो, अल्फा अपॉन थीटा ये था आपका इक्वल टू म्यू बी अपॉन आई, ये हम लोग लेंगे मैग्नीट्यूड फॉर्म के अंदर। I hope you got it. So I can write alpha upon theta is equal to mu b upon I. से इक्वेशन नंबर 5। लेकिन t का फॉर्मूला क्या था? So period of angular acceleration याद करो, t equal to 2 pi by root of alpha upon theta. But alpha upon theta is expressed as mu b upon I. Expressed as mu b upon I, and therefore equation becomes t is equal to 2 pi upon root of mu b upon I. I hope you got it. I will go up. So t equal to 2 pi root of I by mu b. I by mu b. I hope you got it. This is a formula for period of a magnet placed in uniform magnetic field. Placed in uniform magnetic field. I hope you got it. Next. Damped oscillations. What do you mean by damped oscillations? Oscillations in which energy and amplitude keep on decreasing. I give an example. आप एक सिंपल पेंडुलम ले लीजिए। सिंपल पेंडुलम को अगर आप एक एक्सट्रीम पोजीशन से आप उसको रिलीज करेंगे, then this pendulum keep on oscillating for long time before it comes to rest. मतलब क्या कि अगर आप पेंडुलम को आप एक्सट्रीम पोजीशन से छोड़ देंगे तो कम से कम उसको 15 से 20 मिनट लगेगा अपना ओरिजिनल पोजीशन पे आने के लिए, मतलब ओरिजिनल पोजीशन पे रुकने के लिए उसको कम से कम 15 से 20 मिनट लगेगा। इसका रीजन क्या है कि द रेजिस्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय द एयर इज वेरी वेरी लेस। आई होप यू गॉट इट। तो यहाँ पे क्या होता है कि एम्पलीट्यूड एंड एनर्जी डिक्रीज तो होता है लेकिन बहुत माइन्यूटली। लेकिन अभी आप एक सिंपल पेंडुलम ले लो और वो पेंडुलम को आप पानी के अंदर आप यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके जाओ और छोड़ दो, आप क्या लगेगा 1, 2 और 3 विद इन 2 to 3 ऑसिलेशंस के अंदर ही वो अपनी मीन पोजीशन पे रुक जाएगा। इसका रीजन क्या है कि द लॉस ऑफ एनर्जी इज मैक्सिमम और इज वेरी लार्ज इन वाटर। तो फ्लूइड के अंदर क्या होता है कि जो लॉस ऑफ एनर्जी होता है वो काफी ज्यादा होता है एंड देयरफॉर द सिस्टम परफॉर्म्स और वी कैन से ऑसिलेशंस आर डैम्प्ड ऑसिलेशंस। आई होप यू गॉट इट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जहां पे लॉस ऑफ एनर्जी एंड एम्पलीट्यूड इज वेरी वेरी लार्ज, the oscillations are called as damped oscillations. Is that clear? अभी आपको एक स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं। कंसिडर ब्लॉक, आप एक ब्लॉक ले लो। इस ब्लॉक इज कनेक्टेड टू अ स्प्रिंग एंड द स्प्रिंग इज कनेक्टेड टू अ रिजिड सपोर्ट। नाउ इस ब्लॉक के एक एंड में वेन है। वेन मतलब क्या हुआ, यहाँ एक पतला सा शीट जैसा है, जैसे ये आपका ऊपर का पार्ट हो, अब ये शीट के ऊपर। ये मैं शीट क्यों लगा, क्योंकि जब वो पानी के अंदर जाएगा तो जब वो ऊपर आएगा तो ऑब्वियसली उस पर फोर्स लगना चाहिए। कहना मतलब ये हुआ कि डैम्पिंग बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए, और वो डैम्पिंग ज़्यादा होने की वजह से हमने यहाँ पे एक मेटल शीट लिया, उसको बोलते हैं वेन। क्या बोलेंगे, वेन। तो ये आपका जो वेन है वो कीप ऑन ऑसिलेटिंग। अब क्या करेंगे, हम लोग ने इस पे स्प्रिंग को हल्का सा नीचे की तरफ धक्का दिया। जैसे आप स्प्रिंग को, ब्लॉक को पकड़ के आप नीचे धक्का दिया
तो क्या होगा, जैसे आपने फोर्स अप्लाई किया लेकिन उसके ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट होगा। क्या होगा? रिस्टोरिंग फोर्स। और वो जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो डिपेंड करेगा उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। अगर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा तो रिस्टोरिंग फोर्स विल बी मोर एंड मोर, रिस्टोरिंग फोर्स विल बी मोर एंड मोर। इज दैट क्लियर? दूसरी बात ये कि इस पे एक और फोर्स लगेगा, उसको बोलते हैं डैम्पिंग फोर्स। क्या बोलेंगे? डैम्पिंग फोर्स। ये जो डैम्पिंग फोर्स है ये डिपेंड करता है वेलोसिटी पे। मतलब अगर वेलोसिटी ज्यादा तो डैम्पिंग फोर्स भी ज्यादा। कहने मतलब ये हुआ कि सपोज पार्टिकल है एकदम स्लोली मूव कर रहा है, एकदम उसका मास बहुत ज्यादा है और वो स्लोली मूव कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उस पर डैम्पिंग कम लगेगा। लेकिन कोई पार्टिकल बहुत स्पीड से आ रहा है तो उस पर भी ज्यादा फोर्स लगेगा। सो डैम्पिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, मतलब स्पीड। तो दो बातें, जब आप उस पर्टिकुलर वेन को आप नीचे की तरफ पुल करेंगे तो उसके ऊपर वापस दो फोर्स एक्ट होगा। एक का नाम है रिस्टोरिंग फोर्स और दूसरे का नाम है डैम्पिंग फोर्स। पॉइंट नंबर 1, रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, जबकि डैम्पिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। आई रिपीट, रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, जो हमने ऑलरेडी डेफिनेशन पढ़ा है, और डैम्पिंग फोर्स इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। आई होप यू गॉट इट। और ये तो शायद आपने स्टोक्स में पढ़ा रहेगा कि फोर्स कैन बी प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। एक्चुअली इन अंदर की बात ये है कि फोर्स कैन बी प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कैन बी प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, फोर्स कैन बी प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। आई होप यू गॉट इट। रिस्टोरिंग फोर्स में क्या होता है? F इक्वल टू kx। स्टोक्स लॉ के अंदर जो आपका ऑपोजिंग फोर्स था वो उसका फॉर्मूला क्या था? F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वाले में। तो इसका मतलब क्या हुआ? रिस्टोरिंग फोर्स, आई मीन फोर्स कैन बी प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी एंड F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका मतलब फोर्स इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। आई होप यू गॉट इट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दिस फोर्स कैन बी प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ये था आपका डैम्पिंग फोर्स। फोर्स प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ये था आपका रिस्टोरिंग फोर्स। सो टोटल फोर्स विल बी व्हाट? सम ऑफ दीज टू फोर्सेस। हेंस वी कैन से टोटल फोर्स F इज इक्वल टू डैम्पिंग फोर्स प्लस रिस्टोरिंग फोर्स। अच्छा, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टोटल फोर्स? मास इनटू एक्सेलरेशन। सो ma इज इक्वल टू डैम्पिंग फोर्स का फॉर्मूला माइनस b into v, where b is called as constant or we can say damped constant. Is that clear? Damping constant. And Fs minus kx, where k is called as restoring force or restoring constant. So formula becomes ma equal to minus bv, ये damping force, minus kx, ये आपका restoring force। जब ये दोनों यहाँ पे माइनस में तो हम इनको आप यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, ये हो गया आपका प्लस में। तो ma प्लस bv प्लस kx इज इक्वल टू 0। आई होप यू गॉट इट। अभी ये इसका इक्वेशन है, बोले तो डिफरेंशियल इक्वेशन। x तो एज इट इज, व्हाट्स द वेलोसिटी? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट dx by dt, एंड व्हाट एक्सेलरेशन? d square x upon dt square। याद करो ये हमने ऑलरेडी पहले से पढ़ा है कि एक्सेलरेशन इज d square x upon dt square। I hope you got it। पक्का? Now see please। अभी ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है? क्योंकि ये डैम्प्ड ऑसिलेशंस है तो उसके अंदर एम्पलीट्यूड विल कीप ऑन डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली। तो फॉर्मूला क्या होगा? x इज इक्वल टू, मतलब ये उसका सॉल्यूशन है किसका? डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसका प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, आपको प्रूफ नहीं करना है। सिंपली यू शुड नो व्हाट विल बी सॉल्यूशन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। उसका सॉल्यूशन क्या है बस उतना ही आपको जानना है, ये केवल स्टेटमेंट ही आपको जानना है, बाकी इसका कैसे आया वी आर नॉट कंसर्न अबाउट इट। सो फॉर्मूला क्या है? x इज इक्वल टू a e raised to minus bt by 2m, e raised to minus bt by 2m cos of omega dash t plus phi। अब देखो जनरली आपका एम्पलीट्यूड होता है a, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या है? a into e raised to minus b by t into 2m। ये जो प्रोडक्ट है, आई मीन ये जो पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एज डैम्प्ड। मतलब बिकॉज ऑफ दिस एम्पलीट्यूड कीप ऑन डिक्रीजिंग, कीप ऑन डिक्रीजिंग। आई होप यू गॉट इट। And this is angular velocity, I mean to say angular frequency। तो angular frequency
उसका नॉर्मल क्या था, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या था, ओमेगा इक्वल रूट ऑफ के बाई एम, लेकिन यहाँ पे डैम्पिंग हो रहा है, मतलब और भी उससे कम होना चाहिए, एंड देयरफॉर योर न्यू फॉर्मूला इज ओमेगा डैश इज इक्वल टू रूट ऑफ के बाई एम माइनस ये जो टर्म है बी बाई 2m द होल स्क्वायर। इस बिकॉज ऑफ दिस टर्म इट गेट्स रिड्यूस्ड, ये कम होते जाता है, एवरी मोमेंट इज कीप ऑन डिक्रीजिंग, बिकॉज ये डैम्पिंग है, इसके लिए इतना वैल्यू है वो हमेशा उससे कम होगा। तो ये था आपका फॉर्मूला फॉर ओमेगा डैश। आई होप यू गॉट इट। तो उसके अंदर एक बार फिर आपको इन्फॉर्म कर दूं कि ये आपको सिलेबस में नहीं है प्रूव करने के लिए, इसलिए आप यू डोंट हैव टू प्रूव एट ऑल। सो सिंपली रिमेंबर ये आपका सॉल्यूशन था उसमें, और दिस इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड पूरा। और चूंकि एम्पलीट्यूड ए होता है लेकिन लॉस हो रहा है, इसके लिए e रेज़ टू माइनस b by 2m into t इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल लॉस। इसकी वजह से ये जो आपका ओमेगा डैश था वो बिकम्स k by m minus b by 2m द होल स्क्वायर। बस आपको इतने फॉर्मूले ही आपको याद रखना है। अच्छा ये देखो अभी ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम। तो सबसे पहले अगर मान लो एम्पलीट्यूड पहले बहुत ज़्यादा था, लेकिन एवरी मोमेंट इट कीप ऑन डिक्रीजिंग एंड देयरफॉर दिस डीके इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल डीके, कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल लॉस होता है। तो ये था आपका ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। आई होप यू गॉट इट। पक्का? नाउ से प्लीज अभी what do you mean by free oscillations, force oscillations and resonance? I give an example, free oscillations, force oscillations and resonance का। एक वायर ले लो, स्ट्रिंग लिया आपने और उसको आप दोनों तरफ से टाई कर दो, उसको बांध दो। फिर बाद में आप 4 सिंपल पेंडुलम लीजिए, लेकिन याद रखना कि 2 का जो लेंथ है वो सेम होना चाहिए और बाकी एक कम और एक ज्यादा होगा। अब आपने क्या किया, चारों पेंडुलम को वहां से लटका दिया। अब यह पेंडुलम ए को, याद रखना हम केवल ए को डिस्टर्ब करेंगे, आप केवल पेंडुलम ए को हल्का सा इंपल्सिव फोर्स के साथ में हल्का सा इसको आप डिस्टर्ब करो। तो जैसे आप इसको फटका मारेंगे द पेंडुलम ए विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग। चूंकि all 4 are connected with the same string, तो obviously ये वाले भी डिस्टर्ब हो गए और वो भी धीरे धीरे ऑसिलेट करना शुरू करेंगे। आई होप यू गॉट इट। अब क्या होता है, चूंकि ये दो जो पेंडुलम है उनका लेंथ सेम होता है, तो क्या होता है जब एक कभी ऐसा टाइम आएगा जब ये दोनों एक साथ में वाइब्रेट करेंगे। चूंकि दोनों का लेंथ सेम है एंड देयरफॉर वी कैन से उनका एम्पलीट्यूड भी सेम हो सकता है। तो जैसे ही इन दोनों सेम फेज में आएंगे उस समय these two will vibrate with maximum amplitude, मतलब ये अपना पूरा एनर्जी इसको ट्रांसफर करता है, ये इसको अपना पूरा एनर्जी इसको ट्रांसफर करता है एंड therefore they will start moving with maximum amplitude। बाकी इन दोनों का लेंथ अलग अलग है, तो कभी भी ये इतने जितना ये दोनों आपस में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड में जा सकते हैं उतना ये दोनों नहीं जा सकते। हाँ ये दोनों सेम फेज में हो सकते हैं, ये दोनों में सेम फेज में हो सकते हैं, लेकिन सेम फेज में होने के बावजूद भी उतना उनका एम्पलीट्यूड नहीं होगा जितना ए और सी का होगा, क्योंकि व्हेन दे हैव द सेम एम्पलीट्यूड एंड दे आर द सेम फेज देन एम्पलीट्यूड विल बी मैक्सिमम। आई होप यू गॉट इट। व्हेन दीस टू पेंडुलम हैविंग द सेम लेंथ, और जब वो सेम फेज में होंगे, सेम फेज मतलब क्या, ये भी एक्सट्रीम पॉजिटिव तो ये भी एक्सट्रीम पॉजिटिव रहेगा, ये जब ये एक्सट्रीम नेगेटिव तो ये भी एक्सट्रीम नेगेटिव में रहेगा। इन दिस वे जब वो सेम फेज में रहेगा तो उस समय एम्पलीट्यूड विल बी मैक्सिमम, आई होप यू गॉट इट। तो व्हाट डू यू मीन बाय फ्री ऑसिलेशंस? इफ अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द मीन पोजीशन, जैसे आपने ए को डिस्टर्ब किया था तो ए इज परफॉर्मिंग ऑसिलेशंस कॉल्ड एज फ्री ऑसिलेशंस। व्हेन अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन by impulsive force, मतलब फटके मारेंगे तो by impulsive force and release, then oscillations performed by the body are called as free oscillations. When a body is displaced from the mean position, with the help of impulsive force and release, then the motion performed by the body are called as free oscillations. Agree? Then what do you mean by forced oscillations? अभी आपने तो केवल A को डिस्टर्ब किया था, लेकिन ये B और C D डिस्टर्ब हुए बिकॉज A ने उनको डिस्टर्ब किया था।
तो B, C and D are making force oscillations क्योंकि A उनको डिस्टर्ब कर रहा है एंड उनकी वजह से ये भी ऑसिलेट कर रहे हैं। अगर ये इनके साथ में सेम फेज में होता है तो ये भी जोर से भागते हैं, ऑपोजिट में गया तो उनका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। इन दिस वे दीज ऑसिलेशंस मेड बाय B, C and D are called as forced oscillations. What do you mean by resonance? It's a phenomena when the free vibrations matches with the force vibrations. जब free vibration और force vibration जब मैच करता है उस समय क्या होता है? The particle vibrate with maximum amplitude and this phenomenon is called as resonance. When a body is displaced in the mean position, then इसका जो free vibrations है और इसका जो force vibration है अगर दोनों आपस में मैच करेगा तो उन दोनों के सेम फेज में रहेगा, then इन दोनों का amplitude will be very very large. This phenomenon is called as resonance. During resonance, particle vibrates with maximum amplitude because complete energy is being transferred. I hope you got it. तो याद रखना यहाँ पे जब रेजोनेंस होगा then frequency is equal to resonant frequency, उस समय amplitude is maximum. इस पॉइंट पे amplitude maximum होगा और जब रेजोनेंस नहीं होगा तो आप देख सकते हैं कि amplitude is less as compared to this. तो जब रेजोनेंस होता है उस समय amplitude सबसे ज़्यादा रहेगा और जब रेजोनेंस नहीं रहेगा amplitude will be very very less. I hope you got it. पक्का? Now, so with this we complete the theory part of the chapter and let's see the important formulae of this chapter. अब हम चैप्टर के important formulae learn करेंगे. I hope you got it. Now, एक बार फिर we will discuss what are the important formulae. याद रखना कि कोई भी चैप्टर के सम्स करने से पहले आपको फॉर्मूले होने चाहिए और इसमें कुछ फॉर्मूले जो एडिशनली जो टेक्स्ट बुक में भी आपको नहीं मिलेंगे बट वी हैव रिटन हियर. सो प्लीज रिमेंबर इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोई भी चैप्टर के सम्स सॉल्व करने से पहले आप सबके सब फॉर्मूले आप इसको एक बार लर्न कीजिए सो दैट सॉल्विंग द सम्स बिकम वेरी वेरी इजी. एंड रिमेंबर ये जो फॉर्मूले हैं वो उस जो आपके टेक्स्ट बुक में है उससे भी और ज़्यादा फॉर्मूले उसमें ऐड किए हुए हैं एंड इन ए वेरी सिस्टमेटिक वे. सो रिमेंबर मैंने जितने भी आपको ये चैप्टर्स पढ़ाए हैं लास्ट में सबके इम्पोर्टेंट फॉर्मूले दिए हैं एंड यू हैव टू कीप ऑन रिवाइजिंग एंड यू कीप ऑन सीइंग दीज वीडियोस. नाउ सी प्लीज. सो सबसे पहले बाय डेफिनेशन ऑफ SHM, F इक्वल टू माइनस KX. F is called as restoring force, K is called as force constant, X is the displacement and the minus sign shows that force and displacement are in opposite direction. But you know that force is equal to mass into acceleration. आप दोनों को आप इक्वेट करते हैं तो आपको इक्वेशन मिलता है ma equal to minus kx. Then a equal to minus k by m into x. आपको m इस बार पे ट्रांसफर कर दिया था. Then ये k by m is a constant, उसको हम नाम देते हैं ओमेगा स्क्वायर. So k by m equal to omega square. Then what is differential equation of SHM? d square x upon dt square equal to minus omega square x. अगर आप चाहो तो उसको आप यहाँ पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं तो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा? d square x upon dt square plus omega square x is equal to 0. Next, what is acceleration? Acceleration a equal to minus omega square x. What is maximum acceleration? Plus minus omega square a. Minimum acceleration 0. I hope you got it. Then can you see that acceleration is maximum at extreme position? Remember, acceleration is maximum at extreme position. What is the formula for velocity? V equal to plus minus omega root of a square minus x square. What's the V max? Plus minus a omega. इसका मतलब velocity is maximum at mean position. Velocity is maximum at mean position and velocity is maximum at extreme position and that's equal to 0. Equal to 0. I hope you got it. What's the V max? Plus minus a omega. लेकिन velocity maximum कहाँ पे होती है? mean position पे और velocity minimum कहाँ पे होती है? extreme position पे. I hope you got it. पक्का? Now see. Then displacement x is equal to a sine of omega t plus phi.
omega angular frequency, phi initial phase. When particle starts from mean position, phi will be 0, so x is equal to a sine omega t. When particle starts from extreme position, phi will be pi by 2 or 3 pi by 2, then x can be a cos omega t. Maximum displacement of the particle is a, that is amplitude. Displacement during one oscillation is 0, क्योंकि पार्टिकल वहीं से शुरू होता है और एक ऑसिलेशन के बाद में वापस वहीं पे रुक जाता है, सो डिस्प्लेसमेंट इज 0. टोटल डिस्टेंस ड्यूरिंग वन ऑसिलेशन इज 4a. कितना? 4a, बिकॉज मीन्स चालू करेंगे ना, मीन से a and a, it is 4a. Path length is 2a. What's the path length? The distance between two extreme position is called as path length. Period of SHM, t equal to 2 pi by omega, but omega is root of k by m. So can we say t equal to root of, ये डिवाइड करेंगे तो 2 pi root of m by k, root of m by k. Then t equal to 2 pi by root of acceleration per unit displacement. ये एक्चुअली नया फॉर्मूला है. t equal to 2 pi root of x1 square minus x2 square upon v2 square minus v1 square. ये आप प्रूव कर सकते हैं कैसे? यूजिंग दैट फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी. v का फॉर्मूला क्या था? प्लस माइनस ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. आप दो इक्वेशन ले लो, x1 x2 ले लो, v1 v2 ले लो. तो अगर आप t उसमें कांस्टेंट रखना है और a कांस्टेंट रखना है तो आपको ये वाला फॉर्मूला मिलेगा. आप ट्राई करो उस फॉर्मूले से, फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी वाला. कौन सा? v इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. याद रखना ओमेगा कांस्टेंट है और a कांस्टेंट है, बाकी x1 और v1 चेंज होगा. आप उनको स्क्वायर करके सबट्रैक्ट करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला मिलेगा. आप कोशिश करो, नहीं तो फिर डेफिनेटली वी विल डिस्कस. नाउ फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM, f इक्वल टू 1 by t, f इक्वल टू ओमेगा बाय 2 pi, f इक्वल टू 1 by 2 pi रूट ऑफ k by m. एग्जैक्टली t का उल्टा, ये t था, उसका रेसिप्रोकल हमने ले लिया. अब दे दीजिए if x is equal to a sin omega t, उसको आप डिफरेंशिएट करो तो v विल भी कितना होगा? a ओमेगा cos ओमेगा t. इसको भी आप डिफरेंशिएट करो तो a इक्वल टू माइनस a ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t. तो ये डिस्प्लेसमेंट, ये वेलोसिटी और ये एक्सेलरेशन. एग्री? देन पोटेंशियल एनर्जी, p का फॉर्मूला हाफ kx स्क्वायर, p का फॉर्मूला हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर. Then P का फॉर्मूला half m omega square a square. This calls maximum potential energy. I hope you got it. Kinetic का फॉर्मूला half k a square minus x square. But k क्या होता है? m omega square. So half m omega square a square minus x square. Maximum kinetic energy equal to half m omega square a square. Then total energy half k a square. Then total energy k का जगह पे m omega square, so half m omega square a square. I hope you got it. The formula for total energy. Then resultant amplitude r equal to root of a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos of phi 1 minus phi 2. ये आपका फेज डिफरेंस. अगर पार्टिकल सेम फेज में तो ये 0 हो गया, cos 0 is 1, तो ये आपका 1 हो गया. एंड इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको मिलेगा a1 plus a2. तो याद रखना, if particles are in same phase a1 plus a2, opposite phase a1 minus a2, phase difference pi by 2 रहेगा तो root of a1 square plus a2 square. Agree? Resultant initial phase का फॉर्मूला क्या होता है? Delta is equal to tan inverse of a1 sin phi 1 plus a2 sin phi 2 upon a1 cos phi 1 plus a2 cos phi 2. Period of simple pendulum, t equals to 2 pi root of L by G. L is the length of simple pendulum. Period of seconds pendulum, 2 seconds. Period of seconds pendulum is 2 seconds. Then by law of length, t and L का relation क्या है? t is directly proportional to root of L. तो law of length, therefore t2 by t1 equal to root of L2 by L1. Then law of acceleration, t proportional to 1 by root g, therefore t2 by t1 equal to root of g1 by g2. Period of simple pendulum is independent of its mass. मास पे डिपेंड नहीं करता है.
अगर सिंपल पेंडुलम 50 ग्राम का है तो भी उतना ही पीरियड लगेगा, अगर 75 ग्राम का है तो भी उतना ही उसको टाइम पीरियड लगना है। डजंट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ सिंपल पेंडुलम। पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। अगर आपका एम्पलीट्यूड है वो 1 mm का है या 1 सेंटीमीटर का है तो भी आपको उतने टाइम लगने वाला है, और अगर 2 सेंटीमीटर का है तो भी आपको उतने टाइम लगने वाला है। मतलब डजंट डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड प्रोवाइडेड एम्पलीट्यूड रिमेन्स सेम। फॉर डैम्प्ड ऑसिलेशंस A equal to A0 e raised to minus b by 2m into t is exponential factor. When springs are in series, then 1 by ks equal to 1 by k1 plus 1 by k2 plus 1 by k3. When springs are in parallel, then kp equal to k1 plus k2 plus k3. I hope you got it. Now, for damped oscillations, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था? m d square x upon dt square plus b dx by dt plus kx is equal to 0. इसका सॉल्यूशन x is equal to a e raised to minus b by 2m into t cos of omega dash t plus phi. एम्पलीट्यूड क्या है? a dash is equal to a0 e raised to minus b by 2m into t. एंगुलर फ्रीक्वेंसी omega dash is equal to root of k by m minus b square by 4m. अच्छा तब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान दीजिए, ये इसका मेन पोर्शन है। अगर पार्टिकल एक्सट्रीम ये और ये माइनस ए, जब एक ऑसिलेशन, ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ गया वापस यहाँ पे, फिर ये और ये, इट कंप्लीट्स वन ऑसिलेशन एंड द टाइम ऑफ वन ऑसिलेशन इज कैपिटल टी। तो इसका मतलब जब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो टाइम विल बी t/4, टाइम विल बी t/4। उसमें भी ये है, देखो यहाँ पे स्पीड ज्यादा है और यहाँ पे स्पीड कम होते जा रहा है। जब चूंकि यहाँ पे स्पीड ज्यादा है, therefore it will take less time, तो यहाँ कितना टाइम लगेगा ये मीन पोजीशन जाने के लिए? आई रिपीट, मीन से a/2 जाने के लिए, मतलब हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? t/12। कितना? t/12। और जब ये इतना ही डिस्प्लेसमेंट करने के लिए इसका डबल टाइम लगेगा। आई रिपीट, O से a/2 जाने के लिए आपको t/12 लगता है, और a/2 से a जाने के लिए उसका डबल टाइम लगेगा, मतलब कितना लगेगा? t/6, और दोनों मिलकर कितना होता है? t/4। ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं फेज। 0 से a/2 फेज लगता है π/6, और a/2 से a उसका डबल लगेगा फेज, इट इज π/3, और दोनों मिलकर कितना होता है फेज डिफरेंस? π/2। मतलब O से माइनस a में कितना फेज है? π/2, बिकॉज पूरे एक ऑसिलेशन में फेज चेंज होता है 2π से, कितना? 2π से। तो यहां से यहां तक कितना हो गया? π/2। अब ये एंगुलर सिस्टम tau equal to minus c theta, tau is called as torque, theta is angular displacement, alpha equal to minus c theta upon I, alpha is called as angular acceleration, c angular constant, theta angular displacement, I moment of inertia. Then यहाँ से alpha by theta equal to c by I. Then torque experienced by magnet, tau equal to minus mu b sin theta, and then period of magnet in magnetic field is given as t equal to 2 pi root of I by mu b, I by mu b. I hope you got it. These are the formulae for the chapter oscillations. Now we will solve the sums.